مجھے دے تو ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جی السلام علیکم. آج کے دن کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ حکومت کی اکثریت ختم ہو چکی ہے. قومی اسمبلی میں حکومت کا بو کاٹا ہو گیا ہے. حکومت کی پتنگ جو ہے حکومت کے ساتھ کٹ گئی ہے. یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ گورنمنٹ کی، پاکستان تحریک انصاف کی، وزیر اعظم عمران خان کی انتہائی اہم ترین اتحادی، اس نے آج حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا، اپوزیشن کا ساتھ دے دیا، عدم اعتماد میں اپوزیشن کے ساتھ جانے کا اعلان کر دیا. یہ حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا، یا اس کو اگر جان لیوا جھٹکا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. متحدہ قومی موومنٹ کی وجہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تھی، اور متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کے جانے کی وجہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی قومی اسمبلی میں اکثریت ختم ہو چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے کے بعد متحدہ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دے دیں. لیکن باوجود اس کے کہ قومی اسمبلی میں حکومت کی اکثریت بظاہر اس وقت تک ختم ہو چکی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا. یہاں تک کہ آج عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد بھی حکومت کا یہی موقف تھا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، نہ تو ہم سے استعفیٰ مانگا گیا ہے نہ ہی دیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان آخری بال تک لڑیں گے. لیکن ابھی بھی یہ سوال برقرار ہے، کیونکہ کچھ دن ابھی باقی ہیں. کل ایک بار پھر عدم اعتماد کے حوالے سے قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہے. 3 اپریل حکومت کی طرف سے تاریخ سامنے آ رہی ہے عدم اعتماد پہ ووٹنگ کی. تو سوال 3 اپریل تک برقرار رہے گا کہ کیا وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دے سکتے ہیں یا نہیں. دوسری جانب آج وزیر اعظم عمران خان کا خطاب بھی تھا قوم سے، لیکن عسکری قیادت کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو اس کی کچھ ہی دیر کے بعد یہ خبر آئی کہ جی آج کا خطاب کینسل کر دیا گیا ہے. آج کے دن کی دوسری بڑی اہم خبر وہی دھمکی آمیز خط کا یا مراسلے کا معاملہ ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف کابینہ کو سامنے دکھا دیا وہ لیٹر، اس کو پڑھ کے اس کو دکھا بھی دیا، سنا بھی دیا، بلکہ چند صحافیوں کو بھی انوائٹ کیا گیا اور ان کے ساتھ خط کا جو مندرجات ہیں، خط کا جو متن ہے کچھ نہ کچھ وہ شیئر کیا گیا. اور اس کے مطابق وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی کسی ملک کی طرف سے لکھا گیا ہے، کس ملک کی طرف سے ابھی تک یہ سامنے نہیں آیا. اور ایک سفیر نے اس ملک میں پاکستان کے تعینات جو کہ اب سابق ہو چکے ہیں، انہوں نے ایک مراسلہ بھیجا ہے. تو یعنی کہ سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ڈپلومیٹک کیبل ہے. وزیر اعظم سے پوچھا بھی گیا کہ کیا یہ دھمکی ہے یا پھر یہ آپ ایک انالیٹیکل رپورٹ ہے، لیکن اس میں کہا گیا کہ جی یہ دھمکی ہی ہے، رجیم چینج کی بات ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ سب ڈیٹیل سامنے آ چکی ہیں، وہی پرائم منسٹر نے آج ریپیٹ کر دی صحافیوں کے سامنے. لیکن اس کے بعد خبر سامنے یہ آ رہی ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہو گیا. ان کے خلاف جو عالمی سازش ہے اب وہ قتل کی سازش میں تبدیل ہو رہی ہے. یہاں تک کہ وزیر اعظم نے اتحادیوں کو، ایم کیو ایم کو بھی دعوت دی کہ آئیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو مبینہ دھمکی آمیز مراسلہ ہے. لیکن ایم کیو ایم چونکہ اعلان کر چکی تھی اپوزیشن کے ساتھ جانے کا، سو معذرت کر لی خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایم کیو ایم کی طرف سے. سب سے پہلے آج پروگرام میں ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہی بات کریں گے، ان کے آج کے اقدام، آج کے فیصلے کے حوالے سے، اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے جو کہ بڑا زبردست معاہدہ ہے، جو کہ پورے سندھ کے شہری اور دیہی دونوں علاقوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے، کراچی سمیت پورے سندھ کے عوام کی بہتری کے لیے ہے. یہ معاہدہ کب تک چلے گا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان، اور کیا یہ معاہدہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ بنیادی اور پہلے سوالات تو یہ ہیں. اس وقت میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما، سابق میئر کراچی رہ چکے ہیں، وسیم اختر صاحب. السلام علیکم وسیم اختر صاحب، بہت شکریہ. بہت مصروفیات ہیں آپ کی اور آپ لوگ آرام بھی نہیں کر پائے، لیکن حالات اس وقت پاکستان کے سیاسی کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں. ایک تو آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی پیکیج آپ لوگوں کو دیا، ہمیشہ آپ کو آن بورڈ لیتے تھے، کراچی سمیت پورے سندھ کے جو فیصلے ہوتے تھے. ابھی گرین لائن سروس چلوا کر دی، کیونکہ آپ لوگوں نے اس معاہدے میں ٹرانسپورٹ کا ذکر بھی کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی نے تو ٹرانسپورٹ نہیں چلوا کے دی، وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان نے چلوا کے دی. باقی چیزیں بھی وہ آپ کی ایگری، تو کیا ریزن کیا بنی کہ آپ لوگوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا آج؟ دیکھیں، ہمارا جو پیکٹ ہوا تھا شروع میں، جو ایگریمنٹ تھا پی ٹی آئی سے، اس کے بعد جتنی بھی میٹنگز ہوتی تھیں ہم
इमरान खान साहब के सामने अपने इश्यूज रखते थे, जी। जिस तरह से एग्रीमेंट को फुलफिल होना था उस तरह से नहीं हो रहा था, ठीक। नंबर वन। उसके बाद हम एक विजिट पे आए थे इस्लामाबाद एंड लाहौर, KPK सियासी लीडरान से मिलने के लिए, जी। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। जब हमने APC की थी तो ये सब मेंबर्स हमारे उस APC में आए ठीक। थे। इत्तफाकन जब हम यहाँ आए तो ये एक फिजा एतमाद की फिजा कायम हो चुकी सामने थी। आ गई। बिल्कुल। और हम भी ज़ाहिर है सियासी जमात हैं, कोलिशन पार्टनर भी थे और उसके अंदर कैबिनेट में हैं, तो हम भी इसको करीब से देख रहे थे ये क्या हो रहा है ना। और फिर टाइम जैसे जैसे गुजरता गया और मीडिया में भी नज़र आया, हमारी इतलात भी थी कि हुकूमत के अरकान भी बागी हो गए हैं और कहीं और चले गए हैं, नाराज़ हो गए हैं। तो जाहिर है हम भी एक सियासी जमात हैं, हम भी आगे का सोचते हैं। आगे इलेक्शंस भी हैं, लोकल बॉडीज़ के हैं, फिर 23 में आगे इलेक्शंस आएंगे। ये सारी चीज़ें हमें भी देखनी है। फिर हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। हमारी आवाम का प्रेशर था, हमारे वोटर्स का प्रेशर था कि आप कैबिनेट में बैठे हो, कोई चीज़ हल नहीं हो रही। और अब जब ये फैसला किया तो हमारा एक सवाल रहा भी है कि हमें ये तो कंफर्म करें कि आपके नंबर्स पूरे हैं, आपके साथ जो ये लोग चले गए हैं ये वाकई में चले गए हैं। तो वहाँ भी जवाब हमें मिलता नहीं था। फिर हमने अपने अवाम के इश्यूज को सामने रख के ये फैसला किया। आप देखेंगे कि ऐसा एग्रीमेंट आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगा। हमने टोटल एग्रीमेंट जो है वो अवाम से रिलेटेड किया। इसमें कहीं भी हमारी किसी चार्टर ऑफ राइट्स फॉर द पीपल ऑफ सिंध, एग्जैक्टली किसी इंडिविजुअल की या पार्टी की ख्वाहिश कहीं नहीं है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि ये जमातें नून एंड पीपल्स पार्टी से हम माजी में पैक्ट करते रहे हैं, मगर वो भी नाकाम हुए। इस बार यही मेरा अगला सवाल था। इस बार हमने PTI के इस बार क्या तब्दीली है जो आपने ये मुआहिदा किया है? हमने तब्दीली है, एक तो अवामी इश्यूज हैं सारे, ठीक है, इसके लिए हमने स्ट्रगल किए। 4 साल मैं एज अ मेयर आवाज बुलंद करता रहा, इख्तियारात, लेकिन सुनवाई तो कोई नहीं हुई। कोई नहीं सुनवाई हुई। उसके बाद हम आपका टर्म पूरा हो गया। उसके साथ साथ हम कोर्ट में भी गए, उसके साथ एहतजाज भी किए, CM हाउस के सामने डंडे भी खाए, हमारी खवातीन को डंडे पड़े, हमारा एक आदमी शहीद हो गया, एक की आंख साया हो गई। ये सारे काम हमने किए कि हमें सुनो, तो हमारी रिक्वेस्ट क्या है, हमारे ग्रीवेंसेस क्या हैं, हमें टाइम दो, सुनो। कोई नहीं सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ठीक है ना, तो उसको तो इम्प्लीमेंट करना है आपको, अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। और ये पूरी अवाम के सामने आया कि वो इख्तियारात जो कि मेयर के साथ पास होने चाहिए, काउंसिल के अंदर होने चाहिए, वो आप इन लेटर एंड स्पिरिट दें, आर्टिकल 140 को इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, इसमें एक बात प्लीज खत्म कर लूं मैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो आपने जो बात की, माजी में दोनों जमातों के साथ अच्छे हालात नहीं रहे, पीपल्स पार्टी प्लस नून लीग एंड नाउ PTI। मगर इस बार हमने क्या किया कि इशू ऐसा बन गया कि जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनकी रिक्वायरमेंट सामने आ गई, नो कॉन्फिडेंस, तो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है ना। हमने उन सारे नेशनल लीडर्स को साथ बिठा लिया, ठीक है, सबने साइन किए हुए। क्या ये गारंटी है? मैं वही आ रहा हूं, इकट्ठा बैठना ये गारंटी है MQM के लिए? अगर इसको कोई फुलफिल नहीं करता तो क्या कर लेंगे? पूरा मुल्क देख रहा है कि नेशनल लीडर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कराची के इश्यूज, साइन कर रहे हैं, कराची समेत पूरे सिंध के इश्यूज। और अब हमारी जो बातें हुई हैं उसमें मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, इवन जब चौधरी परवेज इलाही थे, वो भी इसकी हिफाजत करने के लिए, इस एग्रीमेंट की हिफाजत करने के लिए उन्होंने बातें की हैं। मीडिया में उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं कि हम इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, MQM के जितने डिमांड्स हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो कराची के जो इश्यूज हैं, उनकी जो लोगों की डिमांड्स हैं, वो एक्सेप्टेंस अवाम के सामने आई है। यही सवाल था मेरा, नेशनल लीडर्स, यही सवाल था मेरा, लेकिन मैं उसको फिर दोहरा देती हूँ। मैं आपसे जवाब एक बार फिर तसल्ली बख्श चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने चार्टर ऑफ राइट्स किया है फॉर द पीपल ऑफ सिंध। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो भी कहती है हम अवाम की पार्टी हैं।
अदम एतमाद में तो आप लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एतमाद है कि ये मुआहिदा जो कि बड़ा जबरदस्त है, जिसके 18 पॉइंट्स हैं, ये इम्प्लीमेंट होगा? आपको एतमाद है पीपल्स पार्टी पे कि इम्प्लीमेंट तो पीपल्स पार्टी ने करना है ना, नून ने जाके तो नहीं? देखिए ऐसा नहीं है, मैं इसका जवाब यूं दूंगा, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट नहीं हुआ हमारा, ये कंबाइंड ऑपोजिशन जो है, जिसमें चौधरी साहब भी हैं, जिसमें शहबाज साहब हैं, जिसमें मौलाना साहब हैं, अख्तर मेंगल भी हैं, अख्तर मेंगल साहब, खालिद मक्सी भी हैं, इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है हमारा, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी तो आपकी सिंध में है ना, ये सारे मामला आपके सिंध से मुताल्लिक है, जो कराची सिंध से इश्यूज पर्टेन करते हैं वो पीपल्स पार्टी पाबंद होगी, और ये बाकी मेंबर्स उसकी हिफाजत करेंगे। उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम ये इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो ये वादे तो पहले भी बहुत दफा होते रहे। देखिए पहले की वफाकी हुकूमत थी तब भी वादे होते रहे। पहले वादे होते थे इंडिविजुअल्स के, अगर पीपल्स पार्टी से हो रहा तो उन्होंने वादा किया। इस बार हमने सारी जमातों को डाल दिया कराची इश्यूज पे। देखें कराची पूरे मुल्क को चलाता है। आपको एतमाद है कि इस दफा आपके साथ, एमक्यूएम के साथ, कराची के साथ, सिंध के साथ धोखा नहीं होगा? मैं उम्मीद करता हूं कि देखें ये एमक्यूएम के साथ धोखा नहीं है। अगर ये एग्रीमेंट को आप इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट नहीं करते, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। कराची पाकिस्तान को चलाता है, कराची को जरूरत है डेवलपमेंट की, वहां ना पानी है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना सेफ्टी सिक्योरिटी है, और कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। तो सर ये करना पड़ेगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, मुस्लिम लीग नून का कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल स्टेक नहीं है कराची में, बावजूद इसके कि शहबाज शरीफ साहब ने वहां से एमएनए का इलेक्शन लड़ा था, जो कि फैसल वाड़ा के खिलाफ, जो कि वो कहते हैं कि धांधली हुई वरना मैं जीत जाता, पर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेक नून लीग का इन कंपैरिजन विद एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी कराची या सिंध में मौजूद नहीं है। यही सूरत हाल मौलाना फजल रहमान साहब की है, सिंध के कुछ इलाकों में है, बट उतना बड़ा पॉलिटिकल स्टेक इन कंपैरिजन टू एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी। तो व्हाई वुड दे पुट एफर्ट इनटू इट कि कहीं पे खुदा ना खास्ता आपको लग रहा है कि चीजें नहीं आगे बढ़ रही, सो उनके लिए क्या ऐसी मजबूरी होगी कि वो इसको पुश अप करें? देखिए मजबूरी नहीं है, नेशनल लीडर्स हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके स्टेक्स भी हैं, ऐसा नहीं है स्टेक्स नहीं है। वो चाहते हैं कि सिंध के अंदर अब जो उनके लोग हैं उनको अपनी तरफ लेके आए। मौलाना साहब भी चाहते हैं, नून भी चाहती है, इंटीरियर सिंध में पंजाबी आबादगार बहुत हैं, उनकी कोशिश है ये। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी इनमें से प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सूबे भी डेवलप हुआ। इवन 18 अमेंडमेंट के बावजूद चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है या डेवलपमेंट नहीं हो रही है या ट्रांसपोर्ट नहीं दी जा रही जो कि मिलनी चाहिए एक शहर को, तो प्राइम मिनिस्टर तो आवाज बुलंद करेगा। ठीक, इस वक्त सॉरी टू कट इन, इस वक्त भी आपको जाना भी है, इसलिए मैं जरा जल्दी जल्दी सवालात करके आपका जानना चाह रही हूँ मौक़िफ़। इस वक्त जो तासुर है, जो खबरें हैं, वो तो ये हैं कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। एमक्यूएम ने बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स को आजमा लिया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। क्या अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो एमक्यूएम को एतमाद है कि वो कराची समेत पूरे सिंध की तरक्की और फलाह के लिए काम करेंगे? देखिए मुझे उम्मीद है, सीइंग इज बिलीविंग, अगर ऐसा होता है। पास जो मेरा एक्सपीरियंस एतमाद नहीं है, उम्मीद है। पास जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैंने उनको काम करते हुए देखा है पंजाब में, ठीक है, और जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उनका दिल करता है कि कराची डेवलप हो, बहुत दफा इसका इज़हार भी कर चुके हैं। बिल्कुल, तो मैं तो उम्मीद लगाए बैठा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो, तो वो कराची को तवज्जो देंगे, डेवलपमेंट करेंगे। माजी में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो उम्मीद बिल्कुल है और हम चाहेंगे भी ये एग्रीमेंट जो है ये इम्प्लीमेंट हो इन लेटर एंड स्पिरिट। ठीक, और जो मिसिंग पर्संस का मामला है, देखिए सारे अवामी इश्यूज हैं, सारे अवामी इश्यूज हैं। अगर मिसिंग पर्संस और आपके दफातर का मामला, मिसिंग पर्सन किसी मतलब समझ में नहीं आता। मिसिंग पर्सन अजीब सा लफ्ज है ना, कि लोग मिसिंग हैं, कहाँ चले गए? कोई लेके गया है ना घर से उठा के, कोई भी, पुलिस लेके गई है, कौन लेके गया है? लोगों ने देखा है, एविडेंस है। अगर उसने क्राइम किया है, अगर वो दहशतगर्द है तो उसकी सजा होगी ना, आप अदालत में प्रोड्यूस करें ना उसको। तो 6 साल से 8 साल से मिसिंग है, मतलब जमहूरियत पसंद कहते हैं हम अपने आप को। जो हुकूमतें आती हैं, इमरान खान साहब के सामने जितनी मीटिंग्स हुई हमने ये पॉइंट रखा, और खुद इमरान खान साहब के कोई काम नहीं हुआ, स्टेटमेंट मौजूद है रिकॉर्ड पे कि मैं मिसिंग पर्संस को देखूंगा, लेकिन काम नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ना। क्या वज़ीर आज़म के हाथ बंधे हुए? वो तो सवाल उनसे बनता है कि क्यों नहीं किया आपने। तो क्या शहबाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं उनके हाथ खुल जाएंगे या बंधे रहेंगे? उन्होंने वादा किया है कि हम सारे मिलके इस इशू को देखेंगे।
जिसमें सारे नेशनल लीडर्स हैं। एक एमएनए भी मिसिंग है ना, अली वजीर जी, साहब। बिल्कुल missing। खुदा ना करे कि मिसिंग पर्सन, बट मिसिंग सीन से मिसिंग है। उनका कर्ब जानते हैं, सोच सकते हैं, उनकी फैमिली के कर्ब से गुजर रही होगी, उनके बच्चे। सो आप लोग बैठे हुए थे सारी नेशनल लीडरशिप के साथ, वहां पे सवाल हुआ था अली वजीर के हवाले से, सबने सुनी अनसुनी कर दी। तो मिसिंग एमएनए के बारे में जब बात नहीं सुनी जा रही, तो मिसिंग पर्संस, मिसिंग कारकुनान के बारे में काम होगा। मेरे ख्याल में जो स्पिरिट नजर आई है, जो जितने भी नेशनल लीडर्स बैठे थे, मुझे उम्मीद तो है, अल्लाह करे हम वरना आप अपने कारकुनान को जवाब दे होंगे। वो तो है ही है ना, कारकुनान भी देख रहे हैं, हमारी मजबूरियां देख रहे हैं कि हमने अपने एग्रीमेंट में सारी नेशनल पार्टीज के साथ कोई ऐसा पैक्ट नहीं किया, वजारत के लिए या गवर्नरशिप के लिए नहीं रखी, सिर्फ अवाम के इश्यूज रखे हैं हमने। ठीक, और दफातर खोलने का मामला क्या आप पुरयकीन है, उम्मीद है उस पर भी? जमहूरियत पसंद मुल्कों में हर एक को स्पेस मिलनी चाहिए, दुरुस्त, ठीक है ना। बेशक पॉलिटिकल स्पेस हमें नहीं मिलती, हमारे झंडे उतार दिए जाते हैं, हमारे बैनर्स उतार दिए जाते हैं, हमारे ऑफिस बंद हैं, सारी सियासी जमातों के ऑफिस खुले हुए हैं। जल्द से जुलूस रैलियां नहीं करने दी हमने ये जाती हैं। पीटीआई के लोगों को ये बताया कि आपके झंडे लगे हुए हैं, आपके ऑफिस खुले हुए हैं, हम आपके कोalition ये राइट पार्टनर्स है हैं। एमक्यूएम का, और मैं आपके बिल्कुल सामने right है। बैठ के नेशनल टीवी पे कह रही हूँ कि एमक्यूएम के दफातर खुलने चाहिए। बिल्कुल खुलने चाहिए, क्यों नहीं खुले। हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, हम कोलिशन में हैं, हम कैबिनेट में हैं, समझ से बाहर है ये बात। ये आवाम को सोचना चाहिए, एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। इनफ बहुत तो हो आपको गया। कोई टाइम पीरियड दिया गया है कि आपके मिसिंग पर्संस इतने अरसे में रिकवर हो सकते हैं, या आपके दफातर इतने अरसे में कोई वादा हुआ है इस बारे में? टाइम पीरियड इन चीजों में तो नहीं दिया गया। जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है, उसको एक महीने के अंदर अंदर आपको स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, 30 मार्च से 30 अप्रैल तक एक्ट पास करके ड्राफ्ट बना के पास कराना होगा आपको। ठीक है, लेकिन मिसिंग पर्सन या आपके दफातर खोलने के हवाले से कोई टाइम पीरियड ये तो हम अपने जितने भी आज बैठे थे, हम उनसे पूछते रहेंगे कि टाइम पीरियड दें। नहीं, क्या हुआ, हमारे मिसिंग पर्सन्स क्यों नहीं आ रहे, हमारे ऑफिस क्यों नहीं खुल रहे। अब सारी जमातें हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, क्या नाम है, अख्तर मेंगल साहब, ये सब हमारे साथ बैठे हैं ना। तो हम तो अब इनसे सवाल करेंगे, ये हिफाजत कर रहे हैं इस एग्रीमेंट की सारे। दुरुस्त। और खासतौर पर जब अख्तर मेंगल का आप नाम ले रहे हैं, खालिद मक्सी का नाम ले रहे हैं, तो फिर एक बहुत बड़ी गारंटी, क्योंकि वो खुद भी इस मिसिंग पर्संस के दफातर बंद होने के वो खुद भी इसके विक्टिम है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, फिर आपको चूंकि जाना भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तो वो धमकी आमेज खत आज काबीना को दिखा दिया, एमक्यूएम को इनवाइट किया था, आप लोगों ने उनकी इनवाइट जो है वो डिक्लाइन कर दी, बट अब वो चीज़ आगे बढ़ गई है, वो रेजीम चेंज से वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को खतरा या उनके कत्ल की साजिश तक चली गई है। क्या आप समझते हैं कि वो खत संजीदा है या गैर संजीदा है, या वज़ीर आज़म के कत्ल की कोई कोशिश हो रही है या साजिश हो रही है, वज़ीर आज़म की जान को खतरा है? मैं इसमें कुछ जवाब नहीं दे सकूंगा, वजह है उसकी। अब अगर उनको ऐसी धमकी आई है सपोज, तो सारी हुकूमत, ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर तो है ना अभी, तो सारे इदारे उनके पास हैं, प्रोब करें कौन दे रहा है धमकी, उसको सामने लेके आए, उसको गिरफ्तार करें, और इदारों का काम भी है ये। और ये धमकी आमेज खत जो है, एमक्यूएम समझती है कि ये गैर संजीदा है, क्योंकि आप लोगों ने डिक्लाइन कर दिया आज खुसूसी शिरकत की दावत? नहीं, उस हवाले से नहीं डिक्लाइन की हमने कहा था कि हम खुद बिजी हैं, हमारा एक इवेंट है, हमारी एंगेजमेंट्स हैं, इस वजह से हमने। और इस खत के मामले पे एमक्यूएम क्या समझती है, क्योंकि आप लोग काबीना का हिस्सा तो रहे हैं, कि वाकई ऐसी कोई धमकी आ सकती है किसी मुल्क की तरफ से? जब तक देखे नहीं, दिखाया नहीं जाए, दिखा सकते नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी वाला मामला आ जाता है उसमें। लेकिन अभी पार्लियामान का इन कैमरा सेशन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बुला रहे हैं, खालिद मकबूल साहब होंगे, तो देख लेंगे, उसके बाद को फिर जवाब दे सकेंगे। इसका अभी कोई जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, वसीम अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक मेयर कराची, बहुत तफसील के साथ बड़े अहम सवालात के जवाब दे रहे थे, कराची का मुकदमा डिफेंड कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से पैनल से डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब डिबेट को आगे बढ़ाएंगे अपने पैनल के साथ। मेरे पास बहुत जबरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मरकजी सरकर्दा रहनुमा, बड़ी जबरदस्त तर्जुमान है अज़मा बुखारी साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं
सेनेटर बन चुके हैं अब निसार खोड़ो साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, 2-3 सवालात इकट्ठे, क्योंकि आज के दिन की हैपनिंग्स इतनी ज़्यादा थी। एक तो बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में अक्सरियत खो चुके हैं, अस्करी क़यादत से मुलाकात भी हुई, बट उसके बावजूद वो डटे हुए हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, और गवर्नमेंट बहुत पुरयकीन, बहुत पुरएतमाद है कि जी हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और आखिर में बाजी पलट देंगे। एक चीज़। दूसरा, जो धमकी आमेज खत का मामला है, अब वो सिर्फ आलमी साजिश तक नहीं रहा, वो वज़ीर आज़म की जान को खतरा, वज़ीर आज़म के कत्ल की साजिश तक पहुंच गया अज़मा बुखारी साहिबा। और ज़ाहिर है इस सब का जो कनेक्शन है वो हुकूमत जोड़ रही है नवाज शरीफ के साथ, अपोजिशन के साथ। शुक्रिया फरीदा। देखिए, आज भी जितना तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की गई वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इस खत को लेकर, उस पर अभी तक जितने लोग ये मिल के आए हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट मिल के आए हैं, उनमें से अभी तक किसी ने कोई बात इस हवाले से कि जिसमें मियां साहब का नाम शामिल होता हो, या जिसमें मियां साहब के बारे में कोई सबूत इवन हो किसी के पास। अब तो ये पहले इस खत की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी मशकूक है, और ये भी कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने एक बहुत नियर एंड डियर फ्रेंड जो साबिक सफीर थे, उनसे ये खत लिखवाया है। और फिर ये, जहां तक अगर इस खत को मैं सच भी मान लूं वरीदा, तो पूरे दुनिया के अंदर जो बहुत सारे ममालिक आपकी बहुत सारी पॉलिसीज पे इख्तलाफ करते हैं, वो हर हुकूमत में करते हैं। ये नहीं है कि इख्तलाफ की बात नहीं हो रही ना, यहाँ पर रजीम चेंज की बात हो रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कहा गया कि अदम एतमाद कामयाब करवानी है और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ना रहे, ये अच्छी बात है। नहीं, ऐसा करवानी वाली बात तो मैंने नहीं सुनी, क्योंकि अभी तो ये जाहिर है, अभी छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली की बात है। अब ये बताइए, इसमें कौन सा ओपन सीक्रेट है? अब तो सफीर साहब का नाम भी आ गया है। अब किसको नहीं मालूम कि ये अमेरिकन सफीर की बात हो रही है, और किसको नहीं मालूम कि ये जो है ये किस मुल्क की बात हो रही है। लेकिन एक तरफ तमाशा भी पूरा क्रिएट किया जा रहा है, इस खत को अपने लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जब बाकी और पॉलिटिकल तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको एग्जॉस्ट कर लिया गया, कोई काम नहीं आया। तो पहले मजहब का कार्ड भी इस्तेमाल हुआ, अमर बिल मारूफ भी हुए, वो फिर वो पता नहीं वो एस्टेब्लिशमेंट की साजिश भी हो गई, फिर लोगों ने बहुत सारे पैसे भी ले लिए थे। अब एंड पे ये आ गया कि जी अब शायद इससे हमारी कोई मदद हो सके। लेकिन अब कल खबरें आ रही हैं ना, कल खबरें आ रही हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन, वहां पर ये खत प्रोड्यूस किया जाएगा, तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी वहां मौजूद होगी। अगर इसकी क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी सामने आ जाती है इस खतरे की, इस धमकी की, तो फिर मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद वापस ले लेगी। नहीं, देखिए, उसकी तो खैर नौबत शायद आए ना, लेकिन मैं जो गुजारिश है कि पूरा अपने पॉइंट मेक कर सकूं। पहली बात यह है कि ये खत प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता अंडर द सीक्रेट एक्ट, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला भी आ गया इस हवाले से। असद मिन्नल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि ये हल्फ की खिलाफवर्जी होगी वज़ीर आज़म की अगर कोई ऐसा खत प्रोड्यूस किया जाएगा। तो होगा क्या? होगा ये कि शाह महमूद कुरैशी अपनी मर्जी की ब्रीफिंग देंगे इस खत के नाम पे। ये या तो फिर खत सामने आया हो ना, फिर आप खत सामने ले आए अगर वाकई इतनी बड़ी बात है। लेकिन इस खत के नाम पे, इस खत को इस्तेमाल करके शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अपनी मर्जी की ब्रीफिंग देंगे, तो उसको कौन मानेगा? लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, और जैसा कि खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो फिर तो ये आपकी कस्टडी में आ जाएगा ना खत ऑटोमेटिकली, फिर तो ये आपके पास होगा, हकीकत है झूठ है सब खुल जाएगा। जी बिल्कुल होगा, और हम शाहिद खकान अब्बासी साहब कल कह चुके हैं कि हम तो इसको सामने ले आएंगे। जो मैं गुजारिश कर रही थी ना आपसे, वो ये है कि बाइडन गवर्नमेंट का कोई भी वर्किंग रिलेशनशिप इमरान खान साहब के साथ नहीं है। इसलिए नहीं कि उन्होंने को बहुत, मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे अमेरिकन उनसे खफा हो जाएंगे? उन्होंने कोई इस्लामिक ब्लॉग बना लिया भुट्टो की तरह, उन्होंने कोई एटमी धमाके कर दिए नवाज शरीफ की तरह, उन्होंने किया गया है। ठीक, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान चूंकि एक अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, ये पूरी दुनिया को पता है। हमारे मुल्क में बात करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये तो सबको पता था कि वो अनइलेक्टेड है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब खुद तहरीक एतमाद पाक पेश होने के बाद मुख्तलिफ मौकों पर कहते रहे, मैं बहुत खुश हूँ, अदम एतमाद सामने आ गई, ये मेरे हत्थे चढ़ गए हैं, मैं तो बहुत देर से चाह रहा था अदम एतमाद आ जाए। उस वक्त तक ये खत पढ़ चुके थे ना, लेकिन उन्होंने इसका कभी जिक्र नहीं किया। इसीलिए इसको आखिरी हथियार के था, पहली बात। दूसरी बात आखिरी ये है कि अगर ऐसी कोई थ्रेट होती तो इमरान खान साहब को जाती थ्रेट तो नहीं मिली है, ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट है।
तो पाकिस्तान के और भी बहुत सारे इदारे पाकिस्तान के मुहाफिज और मालिक हैं। इमरान खान साहब अकेले को जहेज में तो नहीं लाए हुए हैं पाकिस्तान को। ये बनी गाला की प्रॉपर्टी तो नहीं है कि इमरान खान साहब अकेले फैसले करेंगे इस मुल्क के बारे में। ठीक तो है, अभी तक कुछ ना कुछ हो गया होता। अगर बाकी थ्रेट की बात होती तो ठीक है। टोटल टोपी ड्रामा है, ठीक है, ब्लफ है जो इमरान खान का पुराना वतीरा है। ठीक है, टोपी ड्रामा है, ब्लफ है, आप लोग अभी तक ये समझते हैं। निसार खोड़ साहब, सेंटर निसार खोड़ साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मेरी आ रही है। ठीक है, सेंटर निसार खोड़ साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये धमकी हमें इस खत का मामला बहुत संगीन होता चला जा रहा है। आज कैबिनेट के सामने रख दिया, सहाफियों के जरिए मंदरजात जो है वो सामने रख दिए गए, और अब ये बढ़ के वजीर आजम के कत्ल की साजिश तक चला गया है। अगर इस खत की ऑथेंटिसिटी साबित हो जाती है तो पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद वापस ले लेगी? गरीदा बात सुने, जब उसने पब्लिक मीटिंग में अनाउंस किया है तो उसको तो जाहिर है कैबिनेट मिनिस्टर के सामने पेश करना था। अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उन्होंने ये चिट्ठी जो भी थी वो उन्होंने दिखानी ही थी। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो गई कि उसने कैबिनेट मिनिस्टर को शेयर किया है। शेयर तो पहले करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ जब ये सारी चीजें हो रही थी, सारी लॉबीज हो रही थी, तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने 1 महीना जाया किया। अगर कॉन्स्पिरेसी थी तो पहले उसको जाहिर करना चाहिए था कि कम से कम लोग सोचने पे मजबूर होते। तो गवर्नमेंट तो निसार खोड़ साहब पहले दिन से कह रही थी, जबकि आपकी अदम एतमाद आई भी नहीं थी, तब से गवर्नमेंट कह रही थी कि ये आलमी साजिश होने लगी है। नहीं, कोई नहीं कहता, ये कोई नहीं कहता। एक मिनट। आप जब रशियन टूर पे गए तो प्राइम मिनिस्टर ने और उसके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हम अमेरिका को कॉन्फ्रेंस में लेने के बाद गए। ठीक है, गए आप रशिया, जा सकते थे आप, पहले भी गए हैं, और रशिया ने स्टील मिल भी लगाई है पाकिस्तान में, वो अपनी जगह पे। लेकिन आपने खुद कहा कि अमेरिका को हमने कॉन्फिडेंस में लेके हम गए थे। अब आप नाम ले रहे हैं उसका, आप एक मुल्क का नाम ले रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट का नाम लिया जा रहा है। अगर नाम लेने सर नाम तो नहीं लिया गवर्नमेंट ने, सर गवर्नमेंट ने नाम नहीं लिया अभी तक। लिया है, असद उमर ने पब्लिक मीटिंग में कहा है। असद उमर ने पब्लिक मीटिंग में जो बाइडेन का नाम लिया है। क्यों लिया है नाम? आप तो उनको अपने साथ रखते थे ना, आपके पास उनके वफूद आए, आपने उनसे बातें की, आपने उनको कॉन्फिडेंस में लिया, फिर आप उनके नाम ले रहे हो। पहले बताना चाहिए था, कैबिनेट को पहले बताना चाहिए था, अपने एलाइज को पहले बताना चाहिए था। ये यहाँ तक बात क्यों पहुंची? अब उसके खत के लिए आज अखबार में क्या लिखा हुआ है? अखबार में लिखा हुआ है वो फेक लेटर है। फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट ने खत लिखा, खुद साख्ता खत, जो फॉरेन मिनिस्टर को लिखा और फॉरेन मिनिस्टर ने जाके प्राइम मिनिस्टर को बता दिया। अब उस खत की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं कि ये इतना ड्रामा आप खुद कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये सारी चीजें अखबारों में जो आती हैं वो कोई ऐसी मामूली अखबार नहीं होती। लेकिन जो सवाल मैंने अज़मा बुखारी साहिबा से किया, निसार खोड़ साहब, आपकी फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है तो ये खत, ये मरासला, जो भी ये चीज है, जो भी इसका कंटेंट है, वो आप लोगों की कस्टडी में आ जाएगा ना। और कल वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शायद रख रहे हैं, ये खत रख रहे हैं या इसके मंदरजात रख रहे हैं। जब रखेंगे तब देखा जाएगा, जब रखेंगे तब देखा जाएगा। यही मेरा सवाल था कि अगर आपसे शेयर कर ली गई ऐसी चीजें, हम उसकी सेहत पर सवाल उठा रहे हैं। इज इट जेन्युइन लेटर और नॉट? ठीक है, तो अगर ये जेन्युइन साबित हो गया तो फिर यही मेरा सवाल था ना कि फिर पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद वापस ले लेगी, क्योंकि फिर तो आलमी साजिश साबित हो जाएगी ना। अगर मैं इसमें कहूं कि ये इमरान खान का फेलियर है, ये इमरान खान का फेलियर है कि दुनिया को डील नहीं कर सका, दुनिया को साथ डील नहीं कर सका, अपने पाकिस्तान को स्पॉट में ले आया। सर यानी कि गवर्नमेंट आपको इसकी जेन्युइनिटी अगर साबित कर भी दे फिर भी आप लोग नहीं मानेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे? गरीदा बात सुने, ये इमरान खान के फेलियर में जाता है कि दुनिया में उसने पाकिस्तान को इतना आइसोलेट कर दिया, इतना आइसोलेट कर दिया है। ठीक। ये मोदी कहता था कि मैं पाकिस्तान को नहीं, ये मोदी कहता था कि मैं पाकिस्तान के इमरान खान को या पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दूंगा।
तो इमरान खान तो फेल हो गया। ठीक है निसार खोड़ साहब, आपका पॉइंट आ गया। अजमा साहिब आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्विकली, देन आई विल गो टू अमीर अब्बास साहब। जी मैं भी बिल्कुल खोड़ो साहब के जो है वो पॉइंट को आगे ले जाना चाहती हूँ। हाँ। कि एक्चुअली ये इमरान खान की जो है अपने खिलाफ एक चार्जशीट है कि ना वो मुल्क के अंदर लोगों को साथ जो है वो हार्मनी क्रिएट कर सके, ना मुल्क में लोगों को साथ लेके चले, और अपने और गरूर और तकब्बर की वजह से उन्होंने। अच्छा ठीक है, अजमा साहिबा आपकी आवाज भी ड्रॉप हो गई है स्काइप के कनेक्शन की वजह से। अमीर अब्बास साहब आपकी इजाजत से अगर एक ब्रेक ले ली जाए, क्योंकि मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। वापस आते हैं ताकि अमीर अब्बास साहब का जवाब इंटरप्ट ना हो, तफसील से उनका जवाब लेते हैं। अजमा बुखारी साहिबा, निसार खोड़ो साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमीर अब्बास साहब माजरत आपके पास आने में थोड़ी सी ताखीर हो गई, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपका जवाब इंटरप्ट ना हो। आप क्या देखते हैं, दोनों मामलात पे अपना तबसरा, अपना तज्जिया दीजिएगा। एक तो हुकूमत का बोकाटा हो गया, पतंग जो है वो कट गई हुकूमत से, MQM चलेगी ऑपोजिशन के साथ, लेकिन वज़ीर आज़म डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और वो अभी भी पूरी यकीन है कि बाजी एट द लास्ट आवर तब्दील हो सकती है। आपको लगता है कि बाजी पलट सकती है खान साहब के हक में? और दूसरा, ये धमकी आमेज खत का मामला। देखिए, बाजी यूं ही पलट सकती है कि आपके पास आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर की 3 गेंदें हैं और आपने 100 स्कोर बनाने हैं। तो आप एक गेंद पे अगर 4-4 छक्के भी मारना शुरू कर दें तो भी आप ये 100 स्कोर नहीं बना सकते। तो वो डटे नहीं हुए हैं, वो जिद कर रहे हैं, और उनको ग्रेसफुल एग्जिट लेना चाहिए, या वो अपनी कोई ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कौम के सामने रखते कि वो हीरो बन जाते, जिसका उनके पास मौका था 27 मार्च के जलसे की सूरत में। लेकिन उन्होंने अपने उस शो को खुद कंट्रोवर्शियल कर दिया जब उन्होंने एक ड्यूबियस किस्म के कॉन्स्पिरेसी हैचिंग लेटर की वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन की लोगों के सामने। देखिए, जहां तक इस लेटर का मामला है, तो जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, ये वो इमरान खान है कि जिसको अपने मुखालिफ की आंख का बाल भी शैतीर लगता है। ये वो इमरान खान है कि जिसको पत्थर भी हिमालय लगता है। हैरत है कि उस इमरान खान के पास 7 मार्च से एक लेटर पड़ा हुआ है, और वो लेटर बकौल इमरान खान की ये कह रहा है कि आपकी हुकूमत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हैच हुई है, जिसमें बाहर से अरबों रुपए पाकिस्तान आए हैं। वो पैसे नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी में तकसीम हुए हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च किया है, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग किया उस पैसे से, और वो आपकी हुकूमत गिरा रहे हैं। 7 मार्च को ये लेटर आता है, 27 मार्च तक 20 दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो वज़ीर आज़म जो मामूली सी बात को भी नहीं बख्शता, वो इतनी बड़ी बात को नहीं, और जैसे 2-3 मामलात आ गए ना अमीर साहब। इसमें एक तो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए वो चीजें सामने लाना ही नहीं चाह रहे थे, दूसरा हिंद तो ड्रॉप कर रही थी गवर्नमेंट, जब वो बार बार कह रही थी कि जी आलमी साजिश है और हमारे पास सबूत हैं इसके। हिंद तो मुसलसल ड्रॉप हो रहे थे इन दोस 20 डेज एज वेल। देखिए, साजिश आपने ये नहीं कहा कि एक लाइट है जो बीप कर रही है और वो हमें खबरदार कर रही है कि साजिश होने वाली है, तैयार हो जाओ। आपने कहा कि साजिश तो बेनकाब हो गई, साजिश पकड़ी गई। हाँ। तो बाबा, जब साजिश बेनकाब हो गई तो क्या आप साजिश के मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं? ये कितनी इट्स अ जोक, इट्स अ रिडिकुलस थिंग मैन, कि आपके साजिश बेनकाब हो गई, पता लग गया कि बाहर से साजिश हो रही है। और साजिश, देखिए, आज इमरान खान वज़ीर आज़म हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो XYZ, अगर कोई गैर मुल्की ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश करती है तो वो रियासत के खिलाफ साजिश है। साजिश हो गई रियासत के खिलाफ, साजिश एग्जीक्यूशन के मरहले में दाखिल हो गई, साजिश मुकम्मल होने में एक रात बाकी है, और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन अब वो बात इससे भी आगे बढ़ गई ना। अब तो गवर्नमेंट कह रही है कि वज़ीर आज़म के कत्ल की साजिश हो रही है, वज़ीर आज़म की जान को खतरा है। अब तो यहां तक गवर्नमेंट पहुंच गई है। ये देखें, ये PTI में एक लूज कैनन है फैसल वाडा, ये उन्होंने शुद्धनी छोड़ी है अब से थोड़ी देर पहले कि वज़ीर आज़म के कत्ल की साजिश हो गई है। अब ये पता नहीं कौन कौन सी साजिशें घड़ना शुरू कर देंगे। सिर्फ ये कि इनको इस वक्त एक सिंपैथी चाहिए, जाहिर बात है, सियासी लोग हैं, उन्होंने लोगों के पास वापस जाना है, सिंपैथीज विन करनी है। वो नहीं चाहते कि उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल डाउन हो जाए, और उन्होंने ऑपोजिशन को भी डिस्क्रेडिट करना है। तो ऑपोजिशन को डिस्क्रेडिट करने का इस वक्त बड़ा आइडियल ये एक उन्होंने ट्रम्प कार्ड जो उन्होंने कहा मैंने रखा हुआ छुपा के
کہ ऑपोजिशन के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्पिरेटर्स के साथ लिंक कर दो और कौम कहेगी कि भाई ये तो बहुत बुरे लोग हैं, ये तो बड़े साजिशी हैं, गद्दार हैं और ये तो अपने मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लिहाजा इमरान खान जो है उसको तो हीरो बना दिया जाए। तो ये जो उन्होंने कोशिश की, ये इतनी वॉलेटाइल किस्म की और वल्नरेबल किस्म की कोशिश थी कि भाई ये जिसने भी आपको मशवरा दिया कम से कम अच्छा सा स्क्रिप्ट तो बना लेते ना जिस पे यकीन तो लोगों को आ जाता। आप तो एक स्क्रिप्ट भी अच्छा नहीं बना सके, इससे बेहतर तो और बहुत सारे स्क्रिप्ट माजी में आप बनाते रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो कोई अच्छी सी कहानी, कोई अच्छा अफसाना, कोई अच्छा कोई ड्रामा क्रिएट कर लेते। तो यानी कि आप समझते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकली एंड एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सर्वाइवल का नील चांस है, जीरो चांस है बाकी? जी बिल्कुल, सिफर नहीं, 0/0 चांस है। और मुझे आज नहीं, मुझे तो अगले 4-5 साल तक भी इमरान खान साहब कहीं वापस आते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, आपको लगता है कि अगला इलेक्शन वो जब भी होता है इसी साल में या 2023 में, तो खान साहब उसमें पार्टिसिपेट या कम बैक नहीं कर पाएंगे पीटीआई? वो पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। खान साहब से कहें घोड़े दौड़ा ले। अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली सूरत हाल ना होती और आप उससे पहले इलेक्शन करवा लेते पाकिस्तान में, यानी आप फरवरी के एंड पे जनरल इलेक्शन करवाते, इमरान खान साहब को पता चल जाता वो कितने पानी में है। पंजाब में वो जरूर एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आते, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी डेफिनेटली पीएमएलएन होती, पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे होती। तो इमरान खान साहब को सिंपल मेजॉरिटी तो दरकिनार, उनको तो 40-45 सीटें मुश्किल मिलती है। ठीक है जनरल सीट। अजमा साहिबा, कमिंग बैक अगेन टू यू, बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में हम जा रहे हैं, आपसे निसार खुर साहब दोनों से सवालात करूंगी। अजमा बुखारी साहिबा, एक तो वज़ीर आज़म डटे हुए हैं, जो मैंने नवीर अब्बास साहब से भी सवाल किया, और वो बड़े पुर यकीन है कि जी बिल्कुल जिस अदम एतमाद होगी और 3 अप्रैल का दिन हुकूमत की तरफ से बयान किया जा रहा है, वो कहते हैं बाजी पलट जाएगी और आपको पता चलेगा कि हम 100% कामयाब हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि पंजाब के लिए अपोजिशन की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा वज़ारत आला के लिए, क्योंकि आखिरी इत्तला तक उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूरी के लिए चला गया था। देखिए, पहले तो डटे हुए नहीं है इमरान खान साहब, ढीठपन का मुजाहरा कर रहे हैं लीगली भी और एथिकली भी। ही इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो अब इस वक्त अक्सरियत जो है वो होल्ड नहीं करते हैं नेशनल असेंबली के लिए। तो वो अब एक जो है वो इंसान ढीठपने का शिकार हो, और उनके ख्याल में अगर वो है तो पाकिस्तान जो है, उनका दूसरा नाम शायद पाकिस्तान है इमरान खान का, तो वो है तो पाकिस्तान जो है वो ठीक है, वरना बाकी जो है पाकिस्तान पता नहीं खुदा न खासा क्या हो जाएगा अगर इमरान खान ना रहे। हालांकि इमरान खान ना रहेगा तो पाकिस्तान का ज्यादा भला होगा। अब ये जो आप बार बार कह रही हैं, वो पहले से कह रहे थे, नहीं ऐसे नहीं है। मैं आपको याद करा देती हूँ, इमरान खान ने पहले शुरू किया कि उनके खिलाफ जो है वो उनके खिलाफ इंटरनली कोई साजिश हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि उनके एमएनएस को पैसे देकर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए खरीदा गया है। फिर तीसरा स्टांस ये आया कि उनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो साजिश कर रही है। और अब चौथा स्टांस ये आया है जो उन्होंने अपने लिए एक सिंपैथी कार्ड रखा है। इस पूरे खत को मैं सिंपैथी कार्ड कहती हूँ। ये सिंपैथी लेटर है जो उन्होंने पाकिस्तान की कौम को इमोशनल करने के लिए, अब पता है ड्रामा तो वो अखीर करते हैं, अच्छा ड्रामाटिस्ट भी है और प्रोपेगेंडिस्ट भी बहुत अच्छा है कि वो इतनी धड़ल्ले से झूठ और गलत बयानी करेंगे कि आप उसको सच मान लें। 35 पंचर को पूरी कौम ने सच माना नहीं माना था। वो 4 हल्के का तमाशा जो है वो सच माना था कि नहीं माना था। ये जो वो पता नहीं वो कौन से सादिक साहब है, उन्होंने इतने अरब रुपए जो है वो देने का वो ऑफर किया था, वो सच माना था नहीं माना था। तो इनको वो ड्रामेबाजी उस वक्त चल जाती थी बिकॉज ये कंटेनर पे थे। ही वॉज नॉट टेस्टेड एट दैट टाइम, नाउ ही हैज बीन टेस्टेड। अब मालूम है कि इमरान खान पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है और की वजह है। और जो मैं पहले पिछले पॉइंट पे कह रही थी कि इमरान खान अब पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली भी एक थ्रेट बन गया है, क्योंकि ये थ्रेट पाकिस्तान को दी गई है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर होगा तो फिर पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। तो फिर इसको तो कल के जाते आज चले जाना चाहिए। पाकिस्तान का नुकसान तो नहीं करा सकते हम इस शख्स की जो है उसके हमदर्मी के ऊपर, और पाकिस्तान जो है क़यामत बरकरार रहना है। इमरान खान कोई चीज नहीं है, इमरान खान आज है कल नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को कायम रहना है। ठीक है सेनेटर इंसार खुर साहब, सर आपसे लास्ट क्वेश्चन, खासतौर पर जो आज मुआहिदा हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इन द प्रेजेंस ऑफ अदर नेशनल लीडरशिप फ्रॉम द अपोजिशन साइड, पीपल्स पार्टी कितनी संजीदा है इस मुआहिदे के इम्प्लीमेंटेशन के लिए? ये कोई पहला मुआहिदा नहीं हुआ, इस मुआहिदे के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पीपल्स पार्टी कितनी संजीदा? देखें, एमक्यूएम इस वक्त पीटीआई के साथ थी, पीटीआई के साथ भी उन्होंने कोई ना कोई मुआहिदा किया था जी। हमने अपनी वर्किंग की, अगर एमक्यूएम को हम अपने साथ मिला सके हैं
तो इसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एमक्यूएम भी सिंध का हिस्सा है और हम भी सिंध में हैं। एमक्यूएम जानती है कि सिंध में उनको आगे सर्वाइव रखना है, उनकी सियासत सिंध से ताल्लुक रखती है, ठीक है, वो छोड़ दें इसको। मैं असल बात ये कर रहा हूँ कि जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ना। पीपल्स पार्टी कितनी संजीदा है इम्प्लीमेंटेशन के लिए? मुआहदा हो गया, दस्तखत हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, एमक्यूएम आपके साथ आ गई, बट इम्प्लीमेंट तो पीपल्स पार्टी ने करना है ना सिंध में। हमने अगर अपनी एग्रीमेंट की है तो हम उसको स्टैंड बाय करेंगे। ठीक है, हमने अगर एग्रीमेंट की है, अब उनके साथ बैठे हैं तो उसको हम ये सारे मुतालबात 18 मुतालबात एमक्यूएम के पूरे होंगे जो भी हैं। 18 मोबाइल है ना कि मैं नहीं मुतालबात खुल एग्रीमेंट खुल के किए हैं, हमने रात के अंधेरे में नहीं किए। क्योंकि जरदारी साहब का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, लोग उसे कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो मुआहदे कोई कुरान और हदीस नहीं होते। माफ कीजिएगा, हमने अगर किसी के साथ एग्रीमेंट किया है तो ट्रस्ट डेफिसिट को हमने खत्म किया है। ठीक, खत्म करके हमने उसको एग्रीमेंट में आए हैं और ट्रस्ट को हम बिल्ड करेंगे। हम ट्रस्ट को बिल्ड करेंगे, उसे इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है। रही बात इमरान खान की, मैं हमदर्दी करूंगा अगर उसको कहूंगा कि तुम रिजाइन करो, लेकिन मैं हमदर्दी नहीं करना चाहता, हमदर्दी कतन नहीं करना चाहता, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। इंडिपेंडेंट पॉलिसी का ये मतलब नहीं होता कि जी पाकिस्तान को आइसोलेट कर दो, कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो। अब वो भले मुकाबला करे, ठीक, अब वो उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ। मैं उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं करना चाहता, कभी इसको नहीं कहूंगा कि रिजाइन करो। ठीक है सेंटर खोड़ो साहब, आपकी आवाज भी ड्रॉप हो रही है और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर इंसार खोड़ो साहब, असमा बुखारी साहिबा और अमीर अब्बास साहब। ये था आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आज टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।